नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका और हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मैच। क्योंकि टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे, तो ये टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आई। रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव हैं, कप्तानी बुमराह के पास जाने वाली है, टीम के खिलाड़ियों की फॉर्म भी कुछ इतनी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, गेंदबाजी उनकी बेहतरीन हो रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं सावधान इंडिया। अगर टेस्ट मैच जीतना है तो सावधान रहना होगा। देखिए रिपोर्ट। इंग्लैंड में आई जान, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान। इन फॉर्म इंग्लैंड बजा सकती है टीम इंडिया का बैंड। स्टोक्स मैकुलम की जोड़ी ने इंग्लैंड की किस्मत मोड़ी। जिस इंग्लैंड टेस्ट टीम पर उठ रहे थे सवाल, एशेज में हो गया था जिसका बुरा हाल, उस टीम की दो शख्स ने बदल दी है चाल ढाल। जी हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुलम की। नए कप्तान और नए कोच की इस जोड़ी ने इंग्लैंड टीम में ऐसी जान फूंकी है कि टीम के तेवर ही बदल गए हैं और टीम की ऐसी किस्मत मोड़ी है कि उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि टीम इंडिया ने अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है। I think whatever we needed to achieve and whatever boxes we needed to tick in terms of our preparation leading into the test match on Friday, I think we are very happy and satisfied we've been able to do that this week. And yeah, and a big thanks to the club. I thought everyone's really looked after us really well. It's been great crowds. Just it's really lovely to see so many people come to watch the game like this, and just the atmosphere and the vibe around the ground's been excellent. So yeah, it's been a great week. Yeah, especially when you've got just one game or it's a one-off game in a series, it's not really a lot of time to. You've got to hit the ground running hard, and you've got to be able to hopefully get your act together right from the first day of the test match. And there's not a lot of room to maneuver or things to go wrong. So having said that, this week's been really good. I thought the match wicket as well was challenging on the first couple of days and settled down in the last two. So yeah, it was good. It was a great week. द्रविड़ ने तो हुंकार भली है, लेकिन रोहित के मैच खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। द्रविड़ ने टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की हेल्थ पर बड़ा अपडेट दिया। So the update on Rohit is that he's being monitored by our medical team. He has not yet been ruled out. Obviously, he needs to get the negative test to be available. So we will keep monitoring that. We've still got close to 36 hours to go. So he'll have a test later tonight as well, and maybe one tomorrow morning as well. And then we'll see. Obviously, he'll have to come out of that, and it's really up to the medical team and the sports science team to decide on that. So we'll, honestly, we haven't had a chance to see him, obviously, since he is in quarantine, he's in isolation. But we will keep monitoring that situation. रोहित के दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्या तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कप्तानी संभालेंगे, इस पर भी द्रविड़ ने कोई क्लियर बात नहीं की। I think it's probably better that the communication comes officially from the official sources. Yeah, so I'm not sure where Chetan is, but probably once we have some clarity on an exact clarity on Rohit in terms of thing, I think you'll hear from, I guess, the official sources, and it's probably not. It's not for me to give out official communication. टीम इंडिया जहां इस वक्त संकट से जूझ रही है, लेकिन इंग्लैंड भी पूरे जोश में है और इंग्लैंड के इसी जोश का नजारा देखने को मिला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में, जिसमें इंग्लैंड ने उस न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम को 3-0 से रौंद दिया, जिसने पिछले साल भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था। न्यूजीलैंड और भारत के बीच पिछले साल जून में साउथहैम्पटन में WTC का फाइनल हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से एक तरफा अंदाज में हराया था। पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का सुपड़ा ही साफ कर दिया। न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर इंग्लैंड ने बता दिया कि आखिर क्यों टेस्ट में वो अब खतरनाक टीम बन चुकी है। द्रविड़ ने भी इंग्लैंड के प्रदर्शन की तारीफ की है। So no, I think England's played well. I think they've played really well in this series against New Zealand. Not really watched too much of it, but obviously they've been very successful. I think they found themselves in a couple of situations where they had their backs to the wall, or they were a couple of wickets away from potentially losing a test match. But they were able to fight back really well from those positions and found players who were able to
who were able to perform under pressure and get the job done. So yes, I mean, credit to them. They've played well, but we're pretty confident as well. I think we believe we've been playing some very good cricket and positive cricket over the last few years. So we believe that if we play well, then we've got every chance to play against them, to do well against them. ऐसे में भारतीय टीम का इंग्लैंड को रिशेड्यूल्ड टेस्ट मैच में हराना मुश्किल होता जा रहा है। टीम इंडिया को इंग्लैंड से सावधान रहना होगा, क्योंकि मैच में उसे सिर्फ 11 इंग्लिश खिलाड़ियों के खेल की ही चुनौती नहीं होगी, बल्कि मैकलम और स्टोक्स की रणनीति से भी निपटना होगा। भारत फिलहाल इस सीरीज में 2-1 से आगे है। बर्मिंघम में 1 जुलाई से भारत इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया भले ही इस सीरीज में 2-1 से आगे हो, लेकिन मौजूदा फॉर्म और फिटनेस इंग्लैंड के फेवर में है। वहीं मैकलम और स्टोक्स साफ कर चुके हैं कि भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में उनकी टीम पूरी तरह से आक्रामक रवैया ही अपनाएगी। ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। पिछले कुछ दिनों की अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट को देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है। न्यूजीलैंड जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है इंग्लैंड ने, उसको 3-0 से सीरीज में उसका सफाया कर दिया। अब लतिका, यहां पर जिस तरीके की क्रिकेट हमने इंग्लैंड की देखी है पास्ट फ्यू वीक्स में, ऐसा तो लग रहा है कि ये टीम बहुत चार्ज अप है, मोमेंटम इस टीम के साथ है और शायद इंडिया को बहुत ज्यादा सावधान रहने की अब जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैं एक बात कहूंगी रवीश के, रेड बॉल से इंग्लैंड काफी समय से ये क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो रेड बॉल का एक्सपीरियंस अभी है नहीं, क्योंकि अभी आईपीएल खत्म करके ये लोग सीधे साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज खेले हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से ये जो आखिरी मैच है टेस्ट मैच का, उसको खेलने के लिए इंग्लैंड आया है। तो इतना अनुभव अभी है नहीं, रेड बॉल से इतनी आदत अभी है नहीं। अब देखिए वहां पर किस तरह की तैयारी की है। आपने प्रैक्टिस मैच भी खेला है, उसमें आपको पता चला है कि आपके बल्लेबाज किस तरह के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो कितना क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी, क्योंकि इंजरी ने भी यहाँ पर परेशान किया हुआ है। कुछ केएल राहुल जो थे वो इंजर्ड हैं, रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो कह सकते हैं रवीश के चारों तरफ से जो मुसीबतों का पहाड़ है ना, वो भारतीय टीम पर अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि राहुल द्रविड़ जिस तरीके से टीम को संभाल रहे हैं, जिस तरीके से उनका मनोबल बनाए रखे हुए हैं, तो उससे ये लगता है कि फाइट जरूर मिलेगी इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इंग्लैंड की सराहना ये करनी होगी रवीश कि किस तरीके से उन्होंने चेस करके तीनों टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। और ब्रेंडन मैकुलम जिस तरह के एग्रेसिव वहां पर जो कोचिंग का सिखा रहे हैं बेन स्टोक्स को, तो वो यहाँ पर देखने लायक है कि टेस्ट मैच में भी वो दिन नहीं है रवीश कि अगर आपके 40 ओवर में 300 रन का भी टारगेट मिले तो शायद टीमें उसके लिए जाएंगी। और जैसा कि बेन स्टोक्स ने भी कहा कि हम अपने एग्रेसिव माइंडसेट को, एग्रेसिव जो गेम है हमारा, उसको जारी रखेंगे इंडिया के खिलाफ सीरीज में भी। लेकिन यहाँ 2 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को स्पेशली सावधान रहने की जरूरत है, और वो है इंग्लैंड का जे फैक्टर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों का मार लगा दिया था। तो कौन है 2 खिलाड़ी, आइए आपको बताते हैं। इंग्लैंड का जे फैक्टर टीम इंडिया पर डालेगा प्रेशर। भारत का इम्तिहान, रूट बेस्टो से रहना होगा सावधान। न्यूजीलैंड सीरीज में किया विस्फोट, अब इंडिया को देंगे चोट। न्यूजीलैंड के खिलाफ जमकर बरसे जो, क्लास ऐसी कि बड़े बड़े गेंदबाजों को मात दे दे वो। ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं वो कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है टीम इंडिया को। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों जो रूट और जॉनी बेस्टो की, जो भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में दहाड़ने को तैयार हैं। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि टीम इंडिया को दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 132 की शानदार औसत से 396 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहा। वहीं बेस्टो ने 131 की औसत से 394 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेला जाना है। फिलहाल भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे। अगर ये मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो 2007 के बाद पहली बार वो इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीतेगी, यानी टीम के पास 15 साल बाद इतिहास रचने का मौका होगा। हालांकि रूट और बेस्टो भारत का ये सपना तोड़ सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जो भारत को टेंशन दे सकते हैं। बेस्टो और रूट की शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 50 ओवरों में ही 299 रन का टारगेट चेज कर लिया था।
बेस्टो ने इस साल टेस्ट में 3 शतक जड़े हैं, वहीं रूट अब तक 4 शतक जड़ चुके हैं। रूट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का आंकड़ा भी छुआ है। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट का बल्ला इन दिनों जमकर बोल रहा है। टीम इंडिया के खिलाफ रूट का बल्ला तो और जमकर बोलता है। इंडिया के खिलाफ उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो जो रूट ने अब तक टीम इंडिया के खिलाफ 24 टेस्ट मैच खेले हैं और 60.33 की औसत से 2,353 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। वहीं उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले साल इसी सीरीज के पहले 4 मैचों में 94 की औसत से 564 रन बनाए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि कप्तानी छोड़ने के बाद रूट और बेफिक्रे हो गए हैं। वहीं बेस्टो भी घातक अंदाज में खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शतक ऐसे निकल रहे हैं जैसे रनों की बरसात हो रही हो। ऐसे में दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया की नींद उड़ा सकते हैं। बात साफ है, अगर भारत को ये टेस्ट मैच जीतना है तो रूट और बेस्टो पर काबू पाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर यह भी बता दें कि जसप्रीत बुमराह कल टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का कोरोना का जो टेस्ट हुआ है उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, ना कि रोहित शर्मा। लतिका, लेकिन जैसा कि हमने दिखाया कि जॉनी बेस्टो और जो रूट क्या कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही, नॉट ओनली उन्होंने रन बनाए बट जिस एग्रेशन के साथ रन बनाए, शायद उससे भी भारत को सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा। और ये जो दिख रहे हैं प्लेयर्स की किस तरह से चेस कर रहे हैं, इनका माइंडसेट अगर आप देखें तो ये जीत की तरफ माइंडसेट है इनका। इनका ये नहीं है कि हमें ड्रॉ कराना। अगर पहले आप बात करें इंग्लैंड टीम की, जो कि पिछले जो 4 टेस्ट मैच भारत के साथ खेले हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा स्ट्रैटेजी जो थी वो डिफेंसिव रही है इनकी। लेकिन मैकुलम के आने के बाद जो स्ट्रैटेजी रही है वो सीधी सीधी रही है कि हम मैच जीतना है हमें। बिल्कुल, और यही चीज दर्शाता है जब आपके पास इस तरह के बल्लेबाज आपकी टीम में शामिल हों। रवीश तो काफी कुछ कह सकते हैं हम कि प्रेशर रिलीज कर देते हैं अपनी टीम का कि किस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, यहाँ पे एग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनमें ये काबिलियत है। तो मैकुलम ने क्या किया है एज अ कोच, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि आप में काबिलियत है, आप बस इसको ग्राउंड पे जाके इंप्लीमेंट करिए। और जो हमने जॉनी बेस्टो की बल्लेबाजी में देखा कि किस आक्रामकता से उन्होंने बल्लेबाजी की है, टेस्ट मैच में भी फील वही दिया है, T20 क्रिकेट वाला, आईपीएल वाला। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, जिनकी शानदार कप्तानी आपने देखी आईपीएल में और जिनकी शानदार कप्तानी आपने देखी आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में, और इसीलिए हार्दिक का हो गया है प्रमोशन। तो हार्दिक का क्या प्रमोशन हुआ है, देखते हैं इस रिपोर्ट। कप्तानी में किया नाम रोशन, हार्दिक का प्रमोशन। बड़ा करने की ठानी, इंग्लैंड के खिलाफ मिली कप्तानी। सीनियर खिलाड़ी करेंगे रेस्ट, युवा देंगे बेस्ट। जिसने लीडरशिप रोल हासिल करने की थी ठानी, बल्ले और गेंद के साथ जिसका नहीं है कोई सानी, ऐसा प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड दौरे पर भी मिल गई कप्तानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। हार्दिक ने अपनी कप्तानी से सेलेक्टर्स का ऐसा दिल जीता कि उनका प्रमोशन हो गया है। आईपीएल और आयरलैंड सीरीज के बाद हार्दिक अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे। ये जानकारी भी मिल रही है कि आयरलैंड गई टीम ये मैच खेलेगी। हार्दिक की अगुवाई में भारत ने आयरलैंड को 2 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से हराया था। बतौर कप्तान हार्दिक की ये पहली सीरीज थी। हार्दिक की कप्तानी में पहली बार खेलने उतरी भारतीय टीम ने बारिश से बाधित पहले मुकाबले में दमदार जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में आखिरी ओवर में रोमांचक जीत के दम पर भारत ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। टीम के इस प्रदर्शन के बाद खबर आ रही है कि इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले में आयरलैंड के लिए चुनी गई टीम ही खेलने उतरेगी। सीनियर्स को रेस्ट दिया जाएगा, जबकि युवा बेस्ट देने उतरेंगे। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। 5वां रीशेड्यूल टेस्ट 5 जुलाई को खत्म होगा, जबकि पहला T20 मैच 7 जुलाई को होगा। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच खेलने वाली टीम इंडिया पहला T20 खेलेगी। इसके बाद दूसरे T20 मैच से सभी स्टार खिलाड़ियों की वापसी होगी। हार्दिक ने आयरलैंड दौरे पर युवा खिलाड़ियों वाली टीम के साथ कामयाबी हासिल की थी।
और अब उनके सामने एक बार फिर अपने लीडरशिप रोल को साबित करने की चुनौती होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो लतिका इसे क्या कहेंगे? आपके पास शायद चांस नहीं था क्योंकि पहला टेस्ट मैच 5 तक चलेगा और फिर जैसी खबर आ रही है हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ जो फर्स्ट T20 होगा उसमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। शायद ऑप्शन आपके पास था नहीं कोई। बिल्कुल नहीं था। और आप देखिए कि 2021 से और 22 तक अभी तक 8 कप्तान भारत के लिए खेल चुके हैं। कप्तानों की एक प्लेइंग 11 बन सकती है। बिल्कुल। और चलिए ठीक है, हार्दिक को आपने यहाँ पे कप्तान बना दिया और मुझे लग रहा है अगर किसी और को बनाते तो ये 9वां हो जाता। तो मुझे लगता है कि हार्दिक को बनाना इट्स अ राइट डिसीजन, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मोमेंटम में है। आयरलैंड में अच्छा खेले हैं, उनकी खुद की बल्लेबाजी अच्छी हुई है, कप्तानी अच्छी हुई है और जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया, उमरान मलिक जो कि अपना पहला डेब्यू मैच खेल रहे थे, उनको रन पड़े, उसके बावजूद उन्होंने दूसरा मैच दिया, उनको आखिरी ओवर दिया। तो ये दर्शाता है कि कप्तान कितने बढ़िया हैं हार्दिक पांड्या, की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे तभी आप प्रेशर गेम्स में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड जो सीरीज होने वाली है T20 मैचेस, वो कोई आसान बात होने वाली है। और अगर आप सेकंड मैच देखें आयरलैंड के अगेंस्ट तो दैट मैच वाज वेरी क्लोज और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड से आपको बड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट मैच 5 तारीख तक का है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा टेस्ट टीम को। चलिए, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हो रही है, उनके बारे में भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए अब बढ़ते हैं क्रिकेट की और खबरों की तरफ। स्टार भारतीय ओपनिंग बैट्समैन KL राहुल की जर्मनी में सर्जरी हो गई है। राहुल ने ट्विटर पर खुद अपने हार्निया के ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसके चलते राहुल कुछ और महीनों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे। भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में कमाल का खेल दिखाने वाले जिमी ओबोचन को जगह नहीं मिली है, जबकि दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम में शामिल किया गया है। किंग कोहली एक बार फिर अपने चित परिचित अंदाज में नजर आए हैं। विराट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोहली अपने टीममेट शुभमन गिल के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के बाद बात करते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे और उनके पीछे कैमरामैन भी चल रहा था। इस बीच कोहली ने अचानक रुककर कैमरामैन को स्माइल करते हुए पूछा, व्हाट्स अप। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में एक अजीब नजारा देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड के ओली पोप मैच में शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान अपने हेलमेट पर कैमरा लगाकर खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। तो इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिमी एंडरसन की वापसी उसमें हो गई है और इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रांग भी नजर आ रही है। इंडिया के लिए जैसे हमने आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।